AI is a constellation of creativity, technology, and innovation. Good morning, friends and respected teachers. I, Tashani Gupta, And to Tambra Agarwal. I am host of the day. We are here to celebrate the ATL Community Day. AI enables the machines to act with higher level of intelligence and emulate human capabilities of sense, comprehension, and action. It holds the capacity to supersede human actions and intelligence. Let's welcome our vivacious principal, Mrs. Manjurana ma'am. She is a national awardee who is an accomplished academician. She has led the Japuria Group of Educational Institutions to achieve superlative success by positioning it amongst one of the leading schools. Ma'am is a great mentor and is always very prompt in facilitating assistance and resources for activities as to promote essential life skills. Without much ado, I would now walk you through a message by her. Morning, everybody. I extend a hearty welcome to all the participants and the audience as we are set forth to celebrate learning and perseverance through Atal Tinkering Lab Community Day celebration. Well, Community Day celebration gives a great opportunity to the children around the school to come and unleash their potential through hands-on learning and hone their skills through a lot of fun-filled activities which have especially been crafted for them. Being a star ATL and recognized among the top 25 super ATLs by the Niti Aayog, we have been contributing immensely in strengthening the community bonds by sharing resources and providing equal opportunities to the children. We have been doing a lot of these offline physical community programs where the children from the neighboring schools did come. Children from the schools who have been connected with us through hubs of learning had also been part of our community programs earlier. But this time, of course, it is different. It will be conducted on a virtual platform. But I'm sure the excitement and the way it will be done will set an example. Well, in our design thinking program, children have come up with a lot of innovative solutions to specific problems. And now working towards industrial production of our innovative design is something that we're really looking forward to. At international level, we collaborated with Russia as one of our students went on a learning expedition to Cyrus Suchi as a part of a student exchange program. And we are very proud of our student Pratham, who was there for and did spend 10 days at Russia and came back with a lot of great ideas which were then implemented in the school. Even at a local community level, we have been collaborative and doing a bit of by fostering curiosity, creativity, and imagination in our young minds. Our children have been winning marathons, hackathons, stand out, in Maker Fairies. So it has been a huge opportunity that the children got through these programs. I believe each and every child has abundant potential. We just need to unleash it. Facilities, guidance, and mentoring help children to unleash this talent of theirs. So in this note today, let's engage in fun, in tinkering, learning, while designing paper circuit glow cards, learn basics of bread board and our Arduino, etc. So spread joy by sending these Tinker cards to one whom you really want to send, your loved ones. And being passionate educators, we will continue this beautiful journey of learning
as we plan weekend tinkering classes and constant guidance for you this year. So happy learning and happy tinkering. Stay home, stay safe, and do take good care of yourself. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Your encouragement and motivating words inspire everybody to put in their best effort in all endeavors. ATL is a floor of creation. It nurtures innovation and it promotes tinkering. Though you can't physically visit our ATL, let's know more about it by having a 360-degree tour of our ATL. Innovation is invention plus impact. But let's start from the basic. Let's first understand the electric circuit concept by Akansh. Akansh is the ATL student mentor who devotes a lot of his time in helping students who are new to ATL. Good afternoon, everyone. I am Akansh Bansal. Today, I will be telling you about the basic electronic circuits and its components. So, if we say what are electric circuits, we simply get an answer that एक part जिसके through electricity flow करती है is known as electric circuit. And ये electric circuit form होता है जब हम different electronic components को एक साथ connect करते हैं. So if we look around us, we can find a lot of electric components like a cell, bulb, battery, and etc. So let's start by learning the basics of these electronic components. So first we have a cell, electric cell.
सो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक टीवी, रिमोट, क्लॉक्स, टॉय कार्स, टॉर्चेस को पावर देता है. सो इस सेल के टू टर्मिनल्स होते हैं. वन इज द पॉजिटिव एंड द सेकंड इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो जब हम सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो ये सेल एक पूरे सर्किट को पावर करता है. सो दिस इज द symbol of the cell. uh, yeah, this is the symbol of the cell. The longer line, this one, represents the positive terminal of the cell, and the shorter line represents the negative terminal of the cell. So this was about cell. And next we have is a electric bulb. So electric bulb light produce करता है through electricity. तो जब हम बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बल्ब के टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं, तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है. तो द ट्रायंगुलर पार्ट इन द सेंटर ऑफ द बल्ब इज द फिलामेंट, द सेंटर पार्ट. या तो जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाती है बल्ब से, तो जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से हीट लेता है, और जब वो हीट लेता है उसके बाद वो ग्लो करता है, और वो हमें इसलिए विजिबल होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द बल्ब. फर्स्ट फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्लोज बल्ब, मतलब ये बल्ब अभी ऑफ है, एंड द सेकंड symbol represents that the bulb is on. So next is a electric switch. So electric switch use होता है to perform the electrical functions from a fan to bulb. Everything we use is useless without the switch. So एक example लेते हैं fan का. If we want to switch the fan on, तो हम just fan को on करते हैं and it starts working. तो basically what exactly happens is that हम जब switch on करते हैं तो हम circuit close करते हैं and electricity को एक proper path मिलता है flow करने के लिए. तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फैन तक रीच करती है एंड द फैन स्टार्ट्स वर्किंग. उसके बाद लाइक आफ्टर सम टाइम व्हेन वी फील कि नाउ वी शुड स्विच द फैन ऑफ, वी जस्ट स्विच इट ऑफ. तो जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक होता है एंड एक ओपन सर्किट फॉर्म हो जाता है. तो ओपन सर्किट मीन्स दैट कनेक्शन ब्रेक हुआ एंड इलेक्ट्रिसिटी को एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा फ्लो करने के लिए, जिससे वो फैन तक रीच नहीं कर पा रहे. तो देन एक ओपन सर्किट फॉर्म हो जाता है. So then these are the symbol of the switch. So first is the open circuit. This depends that the circuit is open, as it's not closed. So basically every electrical thing will be useless without a switch. So now we have a electric wire. So electric wire is used for connection. Electric wire different electronic components like bulb, cell, switch, etc. को एक साथ connect करता है, जिससे एक पूरा proper circuit form होता है. प्रॉपर सर्किट फॉर्म होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को एक प्रॉपर पाथ मिलता है जिसके थ्रू वो फ्लो कर सके. सो देन दिस इज द सिंबल ऑफ वायर. दिस इज द सिंबल ऑफ वायर. या सो देन वी हैव अ इलेक्ट्रिक बैटरी. सो बैटरी सेल्स की कंपाइलेशन होता है. वी कैन से लाइक इट्स सिमिलर टू अ सेल बट इट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन अ सेल. ये बैटरी यूज होता है लाइक इन वॉकी टॉकीज, क्लॉक्स, स्मोक डिटेक्टर्स एंड मेनी अदर डिवाइसेस. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द बैटरी. Yeah, so this is the symbol of the battery. The plus sign and the longer line depicts the positive terminal of the battery, and this minus sign and the shorter line depicts the negative terminal of the cell. तो ये भी इसके भी टू टर्मिनल्स ही होते हैं just like as cell. So this is just similar to a cell but it's more stronger than a cell. Then we have a complete circuit. So electric circuit is a path for transmitting electric current. तो अब हमने basic electronic components पढ़े, तो now let's try making a complete circuit and blow a bulb. So we will be needing first of all a cell जो पूरे circuit को power करेगा, then a bulb that will glow when we will collect all the things, and a switch which will switch on and off the bulb. So these three things will be required. उसके बाद हमने after we have connected all the things, yeah, so now we have connected all the parts. We can see that अभी circuit open है, so that's why electricity flow नहीं कर सकती. जब circuit open होता है तो electricity को path नहीं मिलता flow करने के लिए. So we can see that the bulb only glows when the switch is on. The bulb will not glow if the switch is off. Except these things, we have some more things which we will be using in today's further session. So first is the LED, light emitting diode.
एक डिवाइस है जिसके थ्रू लाइट एमिट होती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। तो एलईडी के 2 पिन्स होते हैं। फर्स्ट इज द लॉन्गर पिन, दिस इज द लॉन्गर पिन and this represents the positive terminal of the cell. Yeah, so, and this shorter one represents the negative terminal of the cell. जब हम इन एलईडी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हैं तभी ये एलईडी वर्क कर पाती है। आफ्टर दिस वी हैव जंपर वायर। सो जंपर वायर्स भी इलेक्ट्रिक वायर के ही टाइप होते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट जंपर वायर्स आर पिन्स एट ईच एंड। सो जंपर वायर्स के 3 टाइप्स होते हैं। First is male to male jumper wire, then is male to female jumper wire, and the last is the female to female jumper wire. तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि मेल टू मेल में पिन्स दोनों एंड पे होती हैं, पिन्स दोनों एंड पे होती हैं। एंड फिर देन इज मेल टू फीमेल। तो मेल टू फीमेल में पिन एक ही एंड पे होती है, ओनली एट वन एंड, एंड एक एंड ओपन होता है। या देन वी हैव अ फीमेल टू फीमेल वायर। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही एंड्स पे पिन नहीं होती है। यू कैन सी दैट एट बोथ द एंड्स इट्स ओपन। So that's all about the basic of the electronic components. Thank you. तो कैसा लगा दोस्तों? मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। तो शानी, मुझे तो बहुत कुछ पता चला। मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली। थैंक यू आकांश। Innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Vatsal will be helping you with the first activity. Now that we have understood the concepts of electric circuit, let's try making a paper circuit. Vatsal is the ATL student mentor. He helps children in implementing their ideas. His constant support made it possible to work on new projects. Hi everyone, myself Vatsal Agrawal, and today I'm going to tell you how we can make a paper circuit greeting card. तो ग्रीटिंग कार्ड से तो हम सभी लोग familiar हैं। हमने कभी ना कभी ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए होंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, और कभी उनके बर्थडेज पे या फिर उनको बोलने के लिए। सो आज हम उसे थोड़ा इनोवेट करेंगे। आकांश ने जो हमें बताया अभी कि सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम उस नॉलेज को यूज करके टिंकर कार्ड्स बनाएंगे। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। तो हम फ्रेंड्स के लिए ज़्यादातर बनाते हैं, बट इन दिस कोरोना टाइम आई थिंक वी कैन मेक कार्ड फॉर द डॉक्टर्स एंड द फ्रंट लाइन वर्कर्स। हमें उन लोगों को भी अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए जो हमारे लिए फ्रंट लाइन में वर्क कर रहे हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं। हमें उनको भी थैंक करना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। Let's take a look at the components. तो पेपर, स्केच पेन्स, ग्लूज और ये सब चीज़ें तो हम लोग हमेशा कार्ड्स बनाते हैं। इसमें 3 मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द कॉइन सेल। कॉइन सेल में कुछ अलग नहीं है, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं, बेसिकली हमने उसी को कंपैक्ट कर दिया। अब हम एक कार्ड के अंदर बड़े सेल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इस छोटे से कॉइन सेल यूज करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है जैसे नॉर्मल सेल्स में होते हैं, और बल्कि इसमें आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो यहाँ पर मार्क भी होता है एक प्लस सिंबल से। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा कॉपर टेप। कॉपर टेप भी एक ऑल्टरनेटिव है कॉपर वायर्स के लिए। अगेन वायर्स को यूज करने से हमारा कार्ड जो होगा थोड़ा बल्की सा हो जाएगा, और जो वायर्स के कनेक्शंस होते हैं बहुत लूज होते हैं तो कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए हम कॉपर टेप को यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होती है और इफेक्टिवली हम उसे यूज कर सकते हैं। अब एक और भी बहुत मेजर क्वेश्चन है जो आप सबको शायद आ रहा होगा। हम हर बार जब भी हमने या तो कॉपर टेप बनाई, वायर बनाया, या फिर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में हम कॉपर क्यों यूज करते हैं? इसका सिंपल रीजन तो ये है कि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्टर? कंडक्टर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए।
सो कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इवन कॉपर सेकंड बेस्ट कंडक्टर है। आप लोग बोलो कि हम फर्स्ट कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते, तो here comes the second point. We use copper because the best conductor we have is silver. अब सिल्वर क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं, जो बहुत चीप भी होता है, साथ साथ बहुत अच्छा कंडक्टर भी। थर्ड कंपोनेंट इज एलईडी। तो एलईडी से आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे क्योंकि आकांक्ष ने आपको बता दिया। एलईडी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो आप यहाँ भी देख सकते हो। ये वाला है पॉजिटिव क्योंकि ये लेंथ में लंबा है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। So now let's move to the procedure. So materials के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या materials हैं और how they are working and why we are using them. तो सबसे पहले तो आप अपने कार्ड को डिजाइन करोगे, ये फुल आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप पिक्चर्स बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, आप स्काई इज द लिमिट, आप कैसे भी अपने कार्ड को डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सर्किट को बनाएंगे। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो है एलईडी को पेपर पे प्लेस करेंगे और फिर हम कॉपर टेप से उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्कल और नेगेटिव बना हुआ है वो एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। सो मे बी अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा पूरी तरीके से कि ये यहाँ पर हुआ क्या, तो हम लोग एक बार सर्किट डायग्राम के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द एलईडी। एलईडी का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कॉपर टेप के थ्रू यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर लिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पर बेसिकली हमने एक टाइप का स्विच बनाया। ये दोनों यहाँ पर जैसे हम इस पेपर की एज को फोल्ड करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी का कनेक्ट हो जाएगा और इसके थ्रू हमारी एलईडी ग्लो करने लगेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टेम्पररी स्विच का फॉर्मेशन किया। जैसे आपने आकांक्ष ने बताया था कि जब सर्किट ओपन होता है तो हमारा स्विच जो होता है इस तरीके से कुछ दिखता है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक स्विच ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट यूज किया। सो लेट्स सी हाउ इट विल फाइनली लुक। आई होप कि आप लोग इस एक्टिविटी को बनाओगे, आप कार्ड्स बनाओगे, डॉक्टर्स को दोगे, नर्सेस को दोगे और जब भी कोरोना ओवर होता है तो शायद आप अपने फ्रेंड्स को भी दो। थैंक यू। दोस्तों, आप अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन वत्सल। वाओ, व्हाट एन इनोवेशन। तो शानी, मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। मैं भी जरूर ट्राई करूंगी और मुझे लगता है जो हमारे दोस्त कैमरा की दूसरी तरफ बैठे हैं वो भी जरूर ट्राई करेंगे। Innovation is where imagination meets ambition. Let's move on to the second activity of the day by Sambhav and Akash, which is LED blinking using breadboard. Sambhav is the creative head and Akash is the technical head of the Intech ATL team. Good afternoon and welcome to the third event of our community day. आज हम लोग LED ब्लिंक करना सीखेंगे with the help of Arduino. तो फिर चलिए हम लोग कंपोनेंट्स पे चलते हैं। जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं उसमें से एक मेन होगा LED, लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा कि आकांक्ष और वत्सल ने आपको पहले ही बताया है कि इसकी वर्किंग कैसे है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग जो हम यूज़ करने वाले हैं वो USB केबल है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन की केबल होती है, इसका आप चार्ज करते हैं, वैसे ही इसकी केबल है, बट इससे हम अपने आर्डिनो को चार्ज नहीं करेंगे, इससे हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। इस केस में डेटा है कोड, तो हम अपने पीसी से अपने आर्डिनो पे ये डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट थिंग है आर्डिनो, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आर सर्किट। इसे कहते हैं, इसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर को हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे सर्किट का ब्रेन है। अब जैसा कि हमारा ब्रेन जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है। अगर मुझे अपने सामने रखा हुआ ग्लास उठाना है तो उसके लिए मैं अपने ब्रेन को सिग्नल दूंगा कि मुझे वो जो सामने ग्लास रखा है
उसे उठाना है। तो कैसे काम करेगा? उसके लिए मेरा जो ब्रेन होगा वो मेरी मसल्स को सिग्नल देगा कि जो सामने रखा ग्लास है उसे उठाना है। इस केस में हम लोग कैसे काम करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लोगों को कोड की ज़रूरत पड़ेगी। कोड से हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे कि हमें इसके क्या सेट ऑफ फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये काम करेगा। ये चीज़ यूज़ होगी कोड के साथ, ये चीज़ होगा कोड की हेल्प से। चलिए अब हम लोग इसके आर्डिनो के लेआउट को देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सब कुछ लिखा होगा, पर ये बहुत आसान है और आज हम लोग एकदम बेसिक सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को अगर डीप में जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इससे चलिए बेसिक्स भी काम करते हैं। तो जैसे अभी आप देखिए, मैं 13 पिन को मार्क किया है और 0 और 2 पिन को मार्क किया है। जो 2 से 13 नंबर तक की पिन्स होती हैं इसको हम डिजिटल पिन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग जो A0 है और A5 है, इन पिन्स को हम एनालॉग पिन्स कहते हैं। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्राउंड पिन होगा, तो ग्राउंड पिन में माइनस आता है, माइनस टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे माइनस पावर आती है। जो वोल्टेज इन है, वोल्टेज इन में पॉजिटिव पावर आती है। अब जहाँ जहाँ पे आपको वोल्टेज पिन दिख सकता है, दिख रहा है, वो सब कुछ प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ पे आपको एक और डिजिटल ग्राउंड दिख रहा होगा, तो इसको भी नेगेटिव मार्क कर देते हैं। ये चीज़ें हो गई हमारे पिन्स के बारे में, या फिर हम इन्हें ये कह सकते हैं आईओ पिन्स, इनपुट आउटपुट पिन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने आर्डिनो की आईसी की। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है वो है हमारे बोर्ड की आईसी। इसे कहते हैं ATmega 328, और यही मेन चीज़ होती है हमारे आर्डिनो में, जिसमें हम अपना कोड अपलोड करते हैं और यही चीज़ हमें हमारा आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई की। एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नेम से ये क्लियर होता है कि इसमें पावर बाहर से आ रही है, बोले तो एक्सटर्नल। नेक्स्ट थिंग हम लोग यूएसबी प्लग पे जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक यूएसबी केबल दिखाई थी, तो उसका जो यूएसबी केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है और हमारे लैपटॉप पीसी के यूएसबी से कनेक्ट होता है। इससे ये इसे डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब हम लोगों ने आर्डिनो से सीख लिया है, तो अब हम लोग इसके सर्किट पे जाते हैं। सर्किट हमारा ये जो सामने है, यही सर्किट हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं आप दो लोग देख रहे होंगे, मैंने ये जो ब्लैक वायर है ये मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, मतलब इसमें माइनस पावर आ रही है। जो एलईडी है हमारी, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। और जो पॉजिटिव है वो मैं 13 पे पिक कर रहा है। तो 13 जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये डिजिटल पिन है, तो इससे हमारा आर्डिनो इसे सिग्नल देगा ऑन या ऑफ होने के लिए। नेक्स्ट ये चीज़ हमने सीख ली है और यही हमारा मेन काम है। अब नेक्स्ट हम लोग कोड पे जाएंगे जो संभव आपको बताएगा। थैंक यू। Thank you, Akash. That was indeed a wonderful explanation. I am Sambhav, and now I will show you how to code on Arduino platform. As you can see, this is the interface of Arduino software. ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है void setup एंड एक है void loop. void का मतलब होता है इनफाइनाइट, इसका मतलब कि हम इसमें इनफाइनाइट लाइंस लिख सकते हैं कोड की। तो void setup में तो हम वो चीजें लिखते हैं जैसे हमने अपनी एलईडी को 13 पिन से कनेक्ट किया, तो हम इसमें डिफाइन कर दें कि हमने किस पार्ट में अपने सेंसर या एलईडी लगाई है। तो हमने लिखा पिन मोड ब्रैकेट में 13 आउटपुट। आउटपुट हमने इसलिए लिखा क्योंकि एलईडी को हमें ग्लो करवाना है। अगर हमें एलईडी से कुछ वैल्यू लेनी होती है तो हम यूज करते हैं इनपुट। नेक्स्ट इज वॉइड लूप। इन वॉइड लूप हम ये लिखते हैं कि हम क्या काम करवाना चाहते हैं सेंसर या पार्ट से। तो हमने इसमें लिखा डिजिटल राइट ब्रैकेट में 13 हाई। हाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें एलईडी को ग्लो करवाना है। फिर उसके बाद हमने डिले डाला 1 सेकेंड का, ताकि 1 सेकेंड के बाद अगली वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो। अगली कमांड हमने ये डाली डिजिटल राइट ब्रैकेट में 13 लो। अब हमने लो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने एलईडी ग्लो तो करवा ली, बट अब हमें इसे बंद भी करना है, तो हमने लिखा लो। फिर उसके बाद हमने फिर से डिले डाला। अब लूप में हम जो भी चीजें लिखते हैं वो बार बार कंटिन्यूसली चलती रहती है।
तो हमने जैसे ये कोड डाला, पहले तो एलईडी इससे ग्लो होगी, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगी, इससे एलईडी ब्लिंक होगी। अब हमने कोड तो अपने लैपटॉप में लिखा है, बट हम उसे उसमें कैसे भेजेंगे, आर्डिनो में? तो ये हम करते हैं एक केबल, यूएसबी केबल के हेल्प से। जैसे हम कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, कोड आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। So as you can see, the LED will start blinking. We can also increase or reduce the time period in between the glow. Thank you. Any questions? I am sure my friends would have been able to learn a lot from this activity. Thank you, Sambhav and Akash. Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. To keep the ball rolling, we have prepared a video for you. मैं बचपन में बलून के साथ बहुत खेली हूँ, आप भी खेले होंगे। आइए आपको बलून के साथ और एक एम्प्टी कैन के साथ एक एक्टिविटी दिखाते हैं जो हमें वत्सल एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने ये सीखा कि एक सर्किट क्या होता है, सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम एक पेपर सर्किट कार्ड कैसे बना सकते हैं और आर्डिनो कैसे यूज करते हैं। पर इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में एक चीज़ जो थी वो थी कॉमन, वो है इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखा या फिर हम लोगों ने ये सीखा कि सर्किट के अंदर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे एलईडी को ब्लिंक करवाने में हेल्प कर रही थी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो अब हम वो सीखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी होती है। हमें ये पता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब मैं अभी बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी काम करता हूँ, उसके लिए मुझे एनर्जी मिलती है, जो मुझे मिलती है फूड से, जो मैं खाना खाता हूँ उससे मुझे एनर्जी मिल रही है। उसी तरीके से जो भी हमने अभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे या फिर ये पंखा जो चल रहा था या फिर लाइट जो ग्लो करती है, सब चीज़ों के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो अब एक और जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो है करंट का। अब करंट को अगर हम सिंपली देखें तो वो होता है किसी भी चीज़ का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ करंट की। करंट किसी भी चीज़ का फ्लो होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। अब चार्जेस को हमें ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए आपको बस ये समझना चाहिए कि हमारे अराउंड हर जो चीज़ है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी एक टाइप का चार्ज है, ठीक है। सो चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज जो ये वाला है प्लस सिंबल वाला, और एक होता है नेगेटिव चार्ज जो ये वाला होता है। सो अब हर जगह ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उपलब्ध होते हैं, हर जगह ये कहीं ना कहीं मौजूद है। अब हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, तो हम उससे क्या बोलना, वो उसका मतलब क्या है? जब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। जब नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रली चार्ज। और हमें एक और भी चीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी है अगर हम बात कर रहे हैं चार्जेस के बारे में, वो है कि सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको मैग्नेट्स की याद दिलाता होगा। मैग्नेट्स को भी अगर हम देखते हैं तो कभी कभार तो एकदम से वो चिपक जाते हैं और कभी कभार वो एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं आना चाहते और एक दूसरे से दूर जाते हैं। वैसे ही अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज में लेंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे के दूर जाते हैं। तो अब ये एक्टिविटी के थ्रू हम इसे और समझ सकते हैं। सो एक बार एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक एम्प्टी कैन और एक बलून चाहिए, तो आप लोग कहीं भी और कैसे बहुत आसानी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं।
सबसे पहले तो इस एक्टिविटी के लिए आप अपने इस बलून को जो इन्फ्लेटेड है उसको अपने हेयर पे रब करोगे। इससे बलून के अंदर एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और हमारा जो कैन होता है वो न्यूट्रली चार्ज है। सर प्लीज स्टॉप द वीडियो। हाँ, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बलून है उसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जो कैन है उसमें आप दोनों देख सकते हो, एक प्लस सिंबल भी दिख रहा है हमें और एक नेगेटिव सिंबल भी दिख रहा है। तो होता क्या है, जब हम इस बलून को इस कैन के पास लेके आएंगे तो हमें पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पीछे चले जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्रंट साइड हो जाता है, जो हमारा कैन है। अब पॉजिटिव चार्जेस हमारे आगे हैं, नेगेटिव पीछे चले गए हैं, और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर भी मौजूद हैं जो बलून के अंदर है। तो अब होगा ये कि जैसे ही मैं बलून को पास में लेके आऊँगा तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो कैन है वो मूव करेगा बलून की तरफ। You can see this here. इसी वजह से हमारा जो कैन है वो रोल करते हुए बलून की तरफ आएगा। ऐसे ही हम लोग घर पे हम इस इलेक्ट्रिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इन चार्जेस के रिपेल और अट्रैक्शन के फोर्स को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो घर पे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। Thank you, Vatsil, for such an outstanding explanation. I hope you are enjoying the activities. To give you more fun, next in line we have few tutorial videos prepared for you. First, let's see a video about gear grabber. तो शानी, तुम्हें पता है gear grabber क्या होता है? Gear grabber एक ऐसी मशीन है जो हमारे लिए चीजें उठाती है। तुम्हें याद है लास्ट ईयर हमने भी एक gear grabber बनाया था, और इस कोविड के टाइम पे तो वो कितना हेल्पफुल रहेगा। हाँ, तुम्हें पता है जब लास्ट ईयर हम वो गियर ग्रैबर बना रहे थे तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। चलो पहले उससे देखते हैं। During these pandemic times, we all get bored easily. So next, we have a video about an Autobot. It's a small dancing bot to play and dance with you.
Shani, I have to stay alone at home many times. Does this mean I'll have someone to spend time with? I think it will make sure that you don't feel you're alone at all. It will be a cute companion for you. Now let me introduce you to the team who made the event a great success. Creative Head, Sambhav Sirohi. Documentation and Media Head Tatambra Agarwal. Technical Head, Akash Tripathi. Technical Head Pratham Gupta. ATL Student Team Lead, Ayan Anand. Documentation and Media Head Tashani Gupta. ATL Student Team Lead, August Yadav. ATL Student Mentor Akansh Bansal. Technical Head, Siddhant Lal. ATL Student Mentor Vatsal Agarwal. Thank you everyone for your joint efforts in making this event a great success. Now, I would now like to invite Madhuri ma'am to propose the vote of thanks. Ma'am is strongly committed and highly optimistic. She is heading the ATL as ATL convert. She believes in us, guides and mentors us. She pushes us out of our comfort zone to excel. She has been awarded Teacher of Change Award twice by Niti Aayog and also as RTOC, Regional Teacher of Change for Uttar Pradesh, mentoring 25 other ATLs of UP. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm sure that you enjoyed this fun-filled tinkering journey with us today. I express my heartfelt gratitude to our revered Principal cum Director Manjurana ma'am for her stewardship, vision, commitment, and unstinted support for each and every endeavor at school. Thank you so much, ma'am. My heartfelt thank goes to Vice Principal Miss Suprabha ma'am, Headmistress Miss Indu Kohli and Miss Sonal Srivastava for their valuable contribution and guidance in all our efforts. I also thank the entire Intech ATL team, our anchors for the day, Ritambara and Tushani, my fellow ATL teachers, Lavisha ma'am, Shalini ma'am, Mansi ma'am, and Atal Lab Assistant Mr. Vipin Kumar for their cooperation in making this event successful. A heartfelt thanks to Ms. Reema Sharma and Ms. Reena Chaudhary for their inputs. I owe my special gratitude to IT manager Mr. Vijay Arya, who ensured seamless tech support for the execution of today's program. Last but not the least, thank you for being wonderful audience. We shall continue this journey with you through our weekend classes. Schedule of the same will be sent to you soon. Have a great day. Thank you all once again. Take care. Stay safe. Thank you, ma'am, for motivating us. This brings us close to the close of the ceremony. The day might have ended, the event might have closed, but the spark still remains. Let the spark on until we meet again. Till then, Stay safe stay healthy. and stay happy. Thank you.